واشنگٹن ڈی سی میں کچھ شہر ایسے ہیں وہاں برف باری اتنی ہونے والی ہے، مگر ایک بادشاہ سلامت ایسا ہے کہ اس ٹھنڈ میں بھی ایکٹیو ہے اور اس کی ایکٹیویٹی جاری ہے کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرین سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے جو یعنی کہ اتحاد دوسری جماعتوں سے قائم کیا ہے، عالیہ حمزہ ایک گھر میں گئیں تو اس کے بعد فوراً اس گھر پہ چھاپا پڑ گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، اس بڑھتی ہوئی ٹھنڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر ایکٹیو ہیں اور انہوں نے تازہ ترین اردن کے بادشاہ عبداللہ سیکنڈ کو طلب کر لیا ہے، اور وہ اس وقت جب یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، یہ جو ویڈیو ہے اس وقت امریکہ میں وہ موجود ہیں۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو طلب کیا ہے کہ آپ 1 ملین فلسطینیوں کو اپنے یعنی ملک میں اردن میں پناہ دیں، جبکہ ماضی میں اگر آپ اردن کی جو ہسٹری دیکھیں تو پہلے ہی یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں یعنی فلسطینی وہاں مختلف یعنی کہ ادوار میں پناہ لے چکے ہیں، وہ پہلے ہی ان سے تنگ ہے۔ تو اب یہ جو ہے ان کو طلب کر لیا ہے اور ان کو آرڈر دیا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب وہ جو اردن کے بادشاہ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک پلان لے کر پہنچے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے کی یا بریف کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب جو پہلے سے ایک اکارڈ کے تحت جو پہلے یہ 2 اسٹیٹ فارمولہ ہے، اس کے تحت اگر جو آپ کی بات مان لی جائے تو یہ 2 اسٹیٹ فارمولہ جو ہے یہ تو جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو پناہ دی جائے؟ تو ناظرین، ان کا کہنا یہ ہوگا کہ یہ 2 اسٹیٹ فارمولہ جو ہے وہ تو پھر وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو اس طرح وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ ہے یا جو ان کا پلان ہے، اس کی ہر ملک یہاں تک کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ان کی مخالفت کر چکے ہیں، مگر یہ بدلا ہوا ٹرمپ ہے، یہ اپنے فیصلے صادر کرنے میں جو ہے باضد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا صورت اختیار کرتا ہے اور اردن کے جو کنگ عبداللہ سیکنڈ ہیں وہ کیا ان کو بریف کر پاتے ہیں یا مجبور ہوں گے، کیونکہ ان کی مجبوری یہ ہے کہ امریکہ ان کو معیشت میں بھی اچھی خاصی یعنی بلین میں مدد دیتا ہے، اور ان کے عسکری جو ہے ان کے اس میں بھی جو ہے وہ مدد دیتا ہے اور معیشت میں بھی مدد دیتا ہے۔ تو اس نے صاف کہا ہے کہ اگر میرا بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو وہ امداد روک دے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ اسی امداد کا جو چکر ہے، یوکرین کی مدد کی تھی، افواج بھی بھیجی تھی، اسلحہ بھی دیا تھا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو بھی مطلع کر دیا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی الٹرنیٹ جو ہے معدنیات میں رسائی دی جائے جو ہم نے خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں۔ تو یہ ہے ٹرمپ کی جو صورتحال ہے، اور اسی طرح مصر کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پاس یعنی کہ پناہ دے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے جس کی متعدد ممالک اقوام متحدہ سمیت
मुखालफत कर रहे हैं, मगर ट्रंप बाज़िद है ये क्या सूरत अख्तियार करता है ये आने वाले दिनों में, यानी कि ये एक दो दिन में ही पता चल जाएगा। तो ये थी ताज़ा सूरत हाल बैनुल अक़वामी तौर पर। और अब आते हैं पाकिस्तान की जानिब। तो पाकिस्तान में नाज़रीन जो पीटीआई है वो आपको पता है कि अब मुज़ाकराती सिचुएशन तो ख़त्म हो चुकी है। अब जो है वो मुज़ाहमती सूरत है। अब जो है दीगर पार्टियों के साथ एक अलाइंस, एक बड़ा ग्रैंड इत्तेहाद जो है वो पीटीआई कैम कर रही है। उसमें आप देखें कि महमूद खान अचकज़ई जो गुज़श्ता रोज़ जलसा हुआ स्वाबी में, उसमें भी वो नज़र आए और इस ग्रैंड इत्तेहाद में भी जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह वो जमातों का इत्तेहाद कायम हो रहा है और मुख्तलिफ बैठकें हो रही हैं। तो उनमें जो है लाया अमल तैयार किया जा रहा है और ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये इत्तेहाद कितना कारगर साबित होता है। बहरहाल इस इत्तेहाद में जब ये मीटिंग होती हैं तो जो मुख्तलिफ एंकर हैं वो जो गहरी नज़र रखे हुए हैं उनका कहना ये है कि इस इत्तेहाद में, इस मीटिंग में कुछ लोग जो हैं पिच के दोनों तरफ खेलने वाले भी मौजूद होते हैं। वो सारी बातें सुन रहे होते हैं, फिर दूसरी जानब जाकर बता रहे होते हैं। तो वो आखिर नाजरीन जब मामलात तय होंगे या मामलात आगे बढ़ेंगे तो वो लोग एक्सपोज हो ही जाएंगे। जिस तरह पीटीआई में लोग शामिल होते हैं तो जब टाइम आता है जलसे जुलूस का, मुजाहरे का, तो वो लोग जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये मामलात छुपे नहीं रहते। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कौन पीटीआई के नज़रिए के साथ खड़ा होता है, कौन से इत्तेहाद के लोग जो हैं वो कायम रहते हैं या कौन से पिच के दोनों जानब है। ये तो आने वाले वक्त में और मुख्तलफ वाक़यात की सूरत में ज़ाहिर हो ही जाते हैं। तो ये ताज़ा तरीन पीटीआई की जानब से सूरत हाल है। उसके अलावा इमरान खान एक ख़त एक दो रोज़ में और लिखने वाले हैं। उसके अलावा नाजरीन IMF का वफद जो है वो पाकिस्तान में आया हुआ है। तो उन्होंने यानी कि जांच पड़ताल के सिलसिले में कि आइंदा जो अमदाद जारी की जानी है उस सिलसिले में उन्होंने कोई मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं। और वो फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ऐसे सवालात उन्होंने किए हैं कि जिसके बारे में अबसार आलम ने तबसरा किया है कि हैरान कुन बात है कि वो उन्होंने पीटीआई के केसेस के बारे में, इमरान खान के केसेस के बारे में भी पूछा है। तो ये एक बड़ी हैरानगी का उन्होंने इजहार किया है कि उनको ये क्या मामला है कि ये वो इस तरह के सवालात करें। तो IMF के वफद ने वो सवालात किए और फिर वो यानी चीफ जस्टिस से जो याया अफरीदी हैं उनसे वो गैर मुतमिन होके वो जो हैं वो जो मीटिंग है वो ख़त्म हुई। अब वो यहीं पर मौजूद हैं, वो देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं और उनका जो है आइंदा का लाहे अमल क्या होता है IMF का इमदाद के सिलसिले में, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसके अलावा नाजरीन जैसा कि आपको पता है आलिया हमज़ा जो हैं वो पंजाब में एक्टिव हैं। तो वो एक घर में गई हैं। तो जैसे उनके साथ कार्नर मीटिंग या उनके साथ यानी कि पीटीआई के सिलसिले में वो यानी पीटीआई के लोगों को एक्टिव कर रही हैं, कुछ नए लोगों को पीटीआई में ला रही हैं। तो इस तरह उनकी एक्टिविटी जारी हैं। तो एक घर में वो गई हैं तो वहाँ फ़ौरन बाद जो है उन अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया। और फिर जब मालूमात की गई, वहाँ के लोगों ने मालूमात की कि भाई ये क्या मामला है, क्यों गिरफ़्तार किया गया है, तो उन्होंने कहा कि ये जो औरत आपके घर आई थी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करती है, लिहाजा ये मामला
जो है हमने गिरफ्तारी की है, हमारे बस की बात नहीं, ये ऊपर की सतह का मामला है। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो भी रूनुमा हो रहे हैं और बाज़ जगहों पर पीटीआई के लोगों को जो है वो भी पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। और ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।